ہماری اور ان کی آئیڈیالوجی ڈفرینس ہے. اس وجہ سے ہم جو ہے جب وہ مسلمانوں کو ہی ساتھ میں بیٹھنے کے لیے کفر اور شرک کے فتوے دے رہے ہیں تو ہماری محفلوں میں باقاعدہ ہمارے ہندو بھائی ہیں، کرسچن بھائی ہیں، بوجھ ہیں، یہ سارے جو ہیں مہمانان خصوصی کے طور پر آئیں گے. تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کے خاص دن پر اگر ہم اس طریقے سے تفرقہ بازی کر کے، فتوے بازی کر کے لوگوں کو دور کر سے، یہ ہم سے نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے کیا کرا ہے کہ پیار، محبت اور اتحاد اتفاق کے لیے یہ پیار بھری محفل ہم نے شیواجی نگر میں سجائی. ہیلو ایوری ون، آئی نیوز میں آپ کا سواگت ہے. میں ابراہیم آپ کے ساتھ. جانی سارنگ پنجتن سنی تنظیم کے علماء نے جو ہے آج ایک پریس میٹ بلائی ہے. جہاں دوستو اس وقت تمام کئی مشائخین جو ہے یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میلاد النبی کے دن جو ہے ان کا بھی پروگرام رہے گا، لیکن جو بڑا پروگرام پیلیس گراؤنڈ میں ہونے والا ہے یہ اس پروگرام میں نہیں، بلکہ ان کا جو ہے الگ پروگرام 5 تاریخ کے دن شیواجی نگر میں رہے گا، جہاں پر ایک سما خانی کا انتظام کیا گیا ہے. قوالی ہوگی اور الگ الگ مشائخین جو ہے اہل بیت کو چاہنے والے مشائخین جو ہے اس میں جڑنے والے ہیں. تو آئیے بات کریں گے جناب دولت سے اور جو مشائخین جو علماء یہاں پر آئے ہوئے ہیں کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک طرف جہاں پر تمام مسلمان ایک ہو کر پیلس گراؤنڈ میں پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر الگ پروگرام جو ہے شیواجی نگر میں کرنے کا فیصلہ کیوں لیا ہے. اس کے پیچھے کیا راز تھا جو انہوں نے ایک بڑا پروگرام جس میں ملک کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے مشہور علماء کرام آ رہے ہیں وہاں پر جانے سے انکار کر دیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. سرکار دنواس محمد حسن جیسی پنجابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ استوفائن بادشاہ استوفائن دی استوفائن دی بنا استوفائن سردار نجات استدقت یزید فقصہ کے بنا لا الہ استوفائن. تو کیا سرکار دنواس جو ہے شیعہ تھے؟ ارے میرا 3 حسین ہے، میرا شاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا 3 حسین ہے. ارے سب کچھ حسین بتا رہے ہوں، کیا وہ شیعہ رافضی تھے وہ؟ ارے ہمارا تو مرکز اجمیر شریف، ہاں ہمارے تو مرکز جو ہے اولیاء کے یعنی سردار جو ہے غوث پاک ہیں. وہ تو جو ہے ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو باقاعدہ یہ شیعہ ہیں، رافضی ہیں، علم تازیہ وغیرہ کے خلاف ہیں. ہمیں تعلیمات جو ہے سرکار غریب نواز سے ملے ہیں، تو اس لیے ہمیں طریقہ جو ہے سرکار غریب نواز نے بتایا کہ جو ہے قوالی عبادت ہے، تو اس لیے ہم نے جو ہے سما رکھا ہے اور اس سما میں تمام عاشقان حسین، عاشقان اولیاء، محبان آل رسول سب اس میں شرکت فرمائیں گے. الحمدللہ ہم جو ہے یہ نہیں کہتے کہ جو ہے انہوں نے ہمیں مدعو نہیں کیا تو پھر ہم کیا کریں. محمد ماذا الجود والکرم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ماشاءاللہ ہمارے برادر عزیز ہم نے آپ کو تمام چیزیں بتا دی ہے. جیسے کہ 4 تاریخ کو ٹاؤن ہال میں بھی پروگرام کیا جا رہا ہے، پھر 5 تاریخ سے بھی کیا جا رہا ہے. یہاں پر 4 تاریخ میں جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں مشائخ عظام آ رہے ہیں بڑے بڑے اور علماء کرام بھی آ رہے ہیں. بہت عالیشان پیمانے پر وہ پروگرام بھی ہونے جا رہا ہے. تو وہاں پر بیان بھی ہوگا، لنگر بھی ہوگا، اسی طرح یہاں پر سما ہوگی، لنگر ہوگا. آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ پھر 4 تاریخ میں دوسری جگہ بھی ہو رہا ہے پھر وہاں بھی کیوں کر رہے ہیں. اس کا انہوں نے بہترین جواب دیا ہے. میں بھی آپ کو ایک بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. جو علی علی کرتا ہے، ہم لوگ صرف میلاد کی محفل نہیں سجاتے ہیں، ہم تمام ان بزرگوں کا ولادت بھی مناتے ہیں اور شہادت بھی مناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک سٹامپ لگا دیا گیا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، رافضی ہیں. تو وہ نہ ہمیں اپنی محفلوں میں بلاتے ہیں نہ وہ ہماری محفلوں میں آتے ہیں. پھر بھی ہم لوگ ان کے لیے تہہ دل سے تمام عوام کے لیے ہم لوگ دعوت عامر ہیں، کھلے دل سے ان کو بلاتے ہیں کہ ہماری محفل ہے، ہماری محفل میں آئے. اگر وہ ہمیں اپنی محفل میں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو بے شک ہم مولا کے لیے، آقا کے لیے ان کی محفل میں جائیں گے، کام بھی کریں گے اور محفل کو کامیاب بھی کریں گے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام اہل سنت الجماعت سے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت کا جشن ہے، تو اپنے اپنے فرقوں سے باہر نکل کر آئے
अपने अपने इख्तिलाफ को अपने अपने पास रखे। हर इंसान का अपना पर्सनल मैटर होता है, वो अपने पास रखे, सब नबी और आले नबी के लिए एक हो जाए। सरकार का जश्न है, सब लोग दिल खोल कर सरकार का जश्न मनाए, क्योंकि मेरे आका तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए। तो ऐसे नबी जो हमारी जिंदगियों में रहमत बनकर आए, जिनकी उम्मत में पैदा होने के लिए तमाम नबी तरसते रहे कि काश हम मोहम्मद की उम्मत में पैदा होते। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमको अल्लाह ने आका की उम्मत में पैदा किया और अहले बैत का वफादार बनाया है। तो इसके होते नाते हम तमाम लोग सरकार का जश्न इस बार बहुत धूम, हम इस जश्न को मनाते रहेंगे। आपने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि लोग अपने अपने में इख्तलाफात को दूर करें, तो ये आप खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, आप खुद कर सकते थे, कुछ अपने अपने जो पर्सनल है इसको दूर कर नबी की सुन्नत है, नबी का दिन है, तो हम सब एक होकर एक स्टेज पे जाते या एक प्रोग्राम को अटेंड कर लेते। तो वो उसके आपने देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे इख्तिलाफात को दूर करके हर स्टेज पर जा रहे हैं, हर जगह पर जा रहे हैं, हर उस जगह पर भी जा रहे हैं जहां पर हमें खतरा महसूस हो रहा है। हम वहां पर भी जाकर अल्हम्दुलिल्लाह आले मोहम्मद का काम कर रहे हैं। लेकिन हम अपने इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमें अपना दुश्मन समझ रहा है, हमें राफजी समझ रहा है, वो इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दौलत खान, जानी सारा ने पंजतन सुन्नी तंजीम की जानिब से, और आज की जो मीटिंग यहाँ पर की गई है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो 5 सितंबर 2025 शिवाजी नगर में इंशाल्लाह मनाया जा रहा है, इसके ताल्लुक से मीटिंग रखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तमाम सुन्नी कहने वाले हमारे भाइयों ने 1500 साल का साल जो मिलाद मनाने के लिए एक जगह इकट्ठा होकर पैलेस ग्राउंड में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे भाइयों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, पैलेस ग्राउंड में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। मगर हमको अलग करने की वजह यह है कि वो जो स्टेज है वो उलमा का और मौलवियों का है, और ये जो हमने स्टेज लगाया है ये सादात मशाइखीन सूफियान इकराम का स्टेज है। और सूफियों का जो मामला होता है वो इत्तेहाद, इत्तेफाक और प्यार और मोहब्बत का होता है। अब जो मसलक के आला हजरत के बैनर पे इन लोगों ने जो मिलाद का प्रोग्राम रखा हुआ है, इनका फतवा खुला है कि अगर कोई देवबंदी हो या फिर अहले हदीस हो या जमात इस्लामी हो या शिया हजरात हो, उनके साथ सलाम करना या फिर उनके साथ खाना पीना या फिर उनके साथ अच्छे हंस के बात भी कर लेने से निकाह टूट जाता है और इंसान मुसलमान से काफी। मैंने जैसे भी पहले आपको कहा, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइडियोलॉजी की बात नहीं है जी, वो जो है मुसलमानों को एक होना था। बिल्कुल। करबला में अगर हम नजर उठाकर देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में 100 लोगों के नजदीक थे। अजान यहाँ पे भी होती थी, अजान ऑपोजिट में भी होती थी, वहां पे लाखों की तादाद थी। अगर तादाद को देखकर इत्तेहाद के ताल्लुक से अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो बोलते हैं ना कि जमात ज्यादा हो तो सवाब ज्यादा है बोलते, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस जमात में जाके शामिल नहीं हुए। तो हमारा जो मशरक है, मसलक है, वो इत्तेहाद और इत्तेफाक का वाकई में है। सिर्फ बोलकर लोगों को बुलाकर आप जितने भी उलमा इकराम का नाम ले रहे हैं, चाहे वो जितने भी बड़े पैमाने पे क्यों ना हो, जितने भी बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, चैलेंज के साथ बोलता हूं, जब 4 लोगों के बीच में आते हैं तो इत्तेहाद की बात करेंगे, अपनी अपनी मस्जिदों के मिंबरों पे चढ़ेंगे तो बाकायदा वो हमको शिया कहेंगे, राफजी कहेंगे, काफिर कहेंगे। तो ये क्यों, इस तरीके का दोगलापन क्यों है? अगर आप इत्तेहाद करना चाहते हैं तो हमको भी दावत देते, हमारे मशाइखीन को, सादात इकराम को, सूफिया इकराम को दावत देते तो हम भी उस महफिल में शामिल होते, हमारे भी मशवरे हम पेश करते। जो उलमा इकराम को इन्होंने बुलाया है, ऐसे उलमा इकराम को हम सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि जो एक आलिम है, उनका नाम अख्तर हुसैन अलीमी, अख्तर हुसैन अलीमी साहब जो हैं, ऐसे उलमा को अगर शहर बेंगलोर के अंदर बुला रहे हैं तो ये बेंगलोर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, हम सूफिया इकराम के मानने वाले हैं, हमारा मसलक, हमारा मशरब जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक है। जिस वतन में हम खाते हैं उस वतन के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई मौलवी
हमारे दुश्मन देश से अगर गज़वे हिंद का कोई आवाज उठाए कि हिंदुस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़ देंगे, हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे, ऐसी अगर कोई आवाज उठाए और हमारा कोई मौलवी अगर उनकी तायीद कर दे तो हम ऐसे मौलवी को जूता मारते हैं। क्योंकि हमारे लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का आधा हिस्सा है। तो वतन से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि वतन से वाकई मोहब्बत करो। अगर कोई गज़वे हिंद की तालीम आपको बगैर एक दुश्मन मुल्क से दे रहा है तो आप उसकी तायीद करेंगे, तो हम ऐसे मौलवियों की तायीद नहीं करते। कौन है वो दुश्मन मुल्क? देखिए, पाकिस्तान जो है हमारे एक इंडिया का एक ओपन खुला दुश्मन है। अब पाकिस्तान के अंदर आशिफ अशरफ जलाली नाम का एक मौलवी है जिसने अलल ऐलान डिक्लेयर किया था कि हिंदुस्तान के ऊपर गज़वे हिंद कर कर हिंदुस्तान को छोटा पाकिस्तान बनाएगा बोल के उसने कहा था। अब उसकी तायीद करने वाले बरेलवी मकतब फिक्र के जो उलमा हैं, हमारे जो बॉम्बे के हैं, यूपी के हैं, बहुत सारे उलमा हैं, उनका नाम लेकर मैं उनको फेम देना नहीं चाहता। उसमें समझ लीजिए अख्तर हुसैन अलीमी साहब जो हैं, जो आ रहे हैं बेंगलोर को, वो भी हैं, उनको तायीद करने वाले हैं। अब आपके प्रोग्राम में कौन रहेगा मेहमान खसूस? हमारे प्रोग्राम में हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से उनके जो धर्म के जिम्मेदार हैं वो लोग आएंगे, क्रिश्चियन भाइयों की तरफ से फादर आएंगे, फिर सिख धर्म से जो गुरु आएंगे वो आएंगे, और उनके साथ साथ हमने अपने तरफ से जो मिल्ली तंजीमों के उलमाए किराम में, तबलीगी जमात के, बरेलवी जमात के, अहले हदीस जमात के, शिया जमात के तमाम उलमाए किराम को भी हमने दावत दी है। अब देखना यह है कि आप इत्तेहाद की बात करते हैं, यहाँ पे कितने उलमाए किराम आकर जुड़ते हैं, ये देखना है। क्योंकि दावत हम हर बार देते हैं, आइए हमारे साथ इत्तेहाद करिए, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकों में ना बंटो। इसी आयत के ऊपर, औलिया इकराम की तालीम के ऊपर हम उलमाए इकराम को भी दावत दिया, मगर कोई उलमाए इकराम आज तक हमारे प्रोग्राम पे आए नहीं। अब ये प्रोग्राम की तफसील ऐसी है कि हमारे इस प्रोग्राम में बयानात नहीं है, समाख्वानी की महफिल है, और इंशाल्लाह समाख्वानी जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में समाख्वानी होगी, और साथ साथ हिंदुस्तान के ऊपर भी बहुत बड़ा अच्छा सा एक कलाम उन्होंने लिखा हुआ है, नया वाला कलाम। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में वो कलाम को भी इंशाल्लाह रिलीज किया जाएगा। मुकर्रम अली वारसी जो बहुत मशहूर और मारूफ कव्वाल है हिंदुस्तान के, इंशाल्लाह उनकी आमद इस प्रोग्राम में होगी। और इस वजह से हमने बयान नहीं रखा क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद में अलग अलग शहर के उलमा इकराम आकर बयान देते हैं, तो ये बयान का सिलसिला हमने 4 तारीख को टाउन हॉल में रखा है। टाउन हॉल में 4 तारीख को 11 रबीउल अव्वल को इंशाल्लाह बयानात होंगे उलमा इकराम के। अब यहाँ पर भी देखिए 4 तारीख को एक और प्रोग्राम है जो शिवाजी नगर में हो रहा है, और 4 तारीख को आपका ही प्रोग्राम है जो टाउन हॉल में हो रहा है। यहाँ पर भी आपने जो है अलग अलग कर लिया है। देखिए, हमारे आपको दोबारा मैं आपको बोल दूं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बात यहाँ पर सब्जेक्ट की है, जो सब्जेक्ट है तो यहाँ पर बात सब्जेक्ट पे होना चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट ये है, अब आपको फॉर एग्जांपल मैं दे दूं, हमारे हिंदू भाई जो है कुछ ब्राह्मण होते हैं, वो गोश्त नहीं खाते। अब आप ये बोलेंगे इसमें आप बिरयानी खा लेंगे, मटन बिरयानी खाने के बाद वही धोकर आप उनको देंगे तो वो खाना नहीं खाएंगे। इसी तरीके से जब हमारा सूफीज्म का जो मशरक है, मसलक है, ये इत्तेहाद और इत्तेफाक का मसलक है। एक बात बताइए जी, सिखिज्म हो या सुन्नी हो या शिया हो, मिलाद नबी का प्रोग्राम है बिल्कुल, जहाँ पर नबी के बारे में बयानात किए जाएंगे। तो आप जो आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, बिल्कुल। उस दिन का जो प्रोग्राम होगा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नबी के बारे में बात होगी। बात करने वाला कौन है वो मायने रखता है। अगर बात करने वाला इत्तेहाद की तालीम दे रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आकर जुड़ जाएंगे। बात करने वाला ये कहे कि अगर तुम देवबंदी के साथ या शिया के साथ बैठकर खाना खा लो तो तुम्हारा निकाह टूट जाएगा, तो ऐसे लोगों के साथ हमें बैठकर अपना वक्त गुजारा नहीं। शख्स के बोलने से नहीं होता। नहीं, बोलने से नहीं होता, मगर जब वो खुद ऐलान कर चुके हैं, अपने बयानात से ऐलान कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों की महफिल में जाना अहमक है। अब आपको क्या लगता है कि कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे? देखिए, 99% सुन्नी अवाम जो है, अहले सुन्नतुल जमात औलिया इकराम के रास्ते पर है। औलिया इकराम के रास्ते पर आप देख लिया, ख्वाजा बंदा नवाज से लेकर ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर जितने भी औलिया इकराम हिंदुस्तान के अंदर हैं, सब जगह पे एक रिवाज सब जगह पे सेम है, यानी वो कि लंगर, चाहे वो कोई भी मसलक का हो, कोई भी मजहब का हो, आता है तो सबसे पहले खाना खिलाते हैं। तो ये अगर मुफ्तियों का, मौलवियों का अगर मरकज होता तो धर्म पूछकर उनको खाना खिलाया जाता और मसलक पूछकर उनको बाहर ढकेल दिया जाता।
आज भी बहुत सारी सुन्नी मस्जिदों पे हमने देखा यहाँ पर देवबंदियों का और कुत्तों का आना मना है, बहुत सारी मस्जिदें हैं। ये हमारे लिए शर्म से डूबने की बात है कि इस तरीके की जो कार्रवाइयां हो रही है इसको पहले बंद करना चाहिए। आज जो मुल्क के हालात हो रहे हैं, मुसलमान कहीं ना कहीं एक शिकार होता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस तरीके की अगर आप खुराफात करोगे, अगर इस तरीके से आप दहशत गर्दाना काम करोगे तो बाकायदा गैर मुसलमानों के दिलों में आपके लिए नफरत पैदा हो जाएगी। हम चाहते हैं मुट्ठी भरी क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह तेदाद कभी देखकर पीछे नहीं हटते, मुट्ठी भर भी अगर कोई काम करने के लिए आगे बढ़े, इत्तेहाद इत्तेफाक का काम करे तो इंशाल्लाह आज ये मुट्ठी जो है पूरे हिंदुस्तान को फैल के ले लेगी। मेरा ये मानना है। साहिब ने कहा कि वहां से हमें बुलावा नहीं आया तो हमने जो है रद्द किया है, तो कल के दिन अगर आपको बुलावा आया तो क्या आप अपने प्रोग्राम को स्टॉप करें? सालों से हम ये देखते आ रहे कि आप जो जुलूस निकलता है हस्बे मामूल उस जुलूस में शिरकत करते हैं, लेकिन इस मरतबा आपने भी जो है इनके दावत पर वहां से टुकड़ा कर इस तरह का फैसला क्यों लिया है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी दौलत खान भामी शिवाजी नगर में जश्न मीलाद नबी वो मुलाकात किया गया है कि तमाम तफसीलात बता दिए। हम जो है बाकायदा जो है क्योंकि यहाँ पर इसलिए शिरकत फरमाए हैं क्योंकि जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा मीलादुन्नबी यानी 1500 साला मीलादुन्नबी जश्न मीलादुन्नबी मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हम जो है बाकायदा जो है एक दिन पहले रखे हैं तो उसके बाद जो है उसमें शिरकत फरमाए और जुलूस बाकायदा निकलेगा, खानकाह वारसा से भी निकलेगा और खानकाह मौला अली से भी निकलेगा। यहाँ जुलूस जो है बाकायदा उसमें निकले। एक दिन बाद जो है बाकायदा फिर शाम में जो है फिर हम जो है, क्योंकि ये लोग हमें जो है शिया राबसी कहते हैं और बेंगलुरु के किसी मशाइख को ना कोई मीटिंग में बुलाए ना कोई दावत दी, तो फिर हम कैसे इत्तेहाद करें? आप बताएं कैसे इत्तेहाद करें? अगर बुलाते तो जाते। तो आपका गिला यह है कि मशाइखों को मीटिंग में नहीं बुलाया? नहीं बुलाए, किसी को नहीं बुलाया। इससे पहले मिलादुन नबी के जो जुलूस की मीटिंग होती थी उसमें किसी मशाइख को दावत दी गई थी? हाँ दिए गए। मैं खुद उसमें शामिल हुआ करता था, मैं खुद उसमें शामिल हुआ करता। आज अभी भी हम जो है बाकायदा उनकी तायीद करते हैं। एक मशाइख बेंगलुरु का कोई एक मशाइख नहीं। क्या वजह है मौला? पता नहीं, उन लोगों को हसद है कि जो है हम अहले बैत की मोहब्बत में बोलते हैं, अली हजरत अली की मोहब्बत में बोलते हैं, यानी पंजतन पाक 12 इमाम 14 मासूम अलम ताजिया वगैरह मुहर्रम वगैरह करते हैं। हम जो है शिया की तकलीफ करते हैं। शिया तो ऐसा नहीं है। सरकार गरीनाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी बना अस्त हुसैन सरदार नदात दस्त दस्त यजीद फक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तो क्या सरकार गरीनाज जो है शिया थे? अरे मेरा दीन हुसैन है, मेरा शाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा दीन हुसैन है। अरे सब कुछ हुसैन बता रहे हो, वो क्या वो शिया राबदी थे वो? अरे हमारा तो मरकज अजमेर शरीफ है। हाँ, हमारे तो मरकज जो है औलिया के यानी सरदार जो है गौसे पाक हैं। अरे वो तो जो है उनको मारने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों को कहते हैं कि जो है बाकायदा ये शिया हैं, राबजी हैं, अलम ताजिया वगैरह के खिलाफ हैं। वो हमें तालीमात जो है सरकार गरीबनाज से मिले हैं, तो इसलिए हमें तरीक़ा जो है सरकार गरीबनाज ने बताया कि जो है कव्वाली इबादत है, तो इसलिए हमने जो है समा रखा है और उस समा में तमाम आशिक़ान हुसैन, आशिक़ान औलिया, मुहिब्बान आले रसूल सब उसमें शिरकत फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ये नहीं कहते कि जो है उन्होंने हमें मदू नहीं किया तो फिर हम क्या करें। इसलिए हम जो है हम अपने सूफियाना तरीके से, जैसा कि सरकार आलम पना ने कहा कि सुना सुना मोहब्बत करो, हसद से बचो, हमारा कोई मसलक ही नहीं। अरबी मसलक तो ये लोग बनाए हैं, सरकार गरीबनाज कोई मसलक नहीं बनाए, चिश्ती बनाए, चिश्ती मसलक नहीं है। गौसे पाक जो है कादरी बनाए, कोई मसलक नहीं है। वो निजामुद्दीन औलिया निजामी बनाए, कोई मसलक नहीं है। सरकार बंदनवाज यसुदराज
यानी जो मसलक नहीं बनाए वो बंदा नवाजी बनाए, सरकार आलम पना वारिस पाक वारसी बनाए, कोई मसलक नहीं बनाए। हम मसलकों को नहीं मानते। सरकार हाजी वारिस अली शाह फरमाते हैं कि सुना सुना मोहब्बत करो, हसद से बचो, मोहब्बत ही खुदा है। यानी हमारा मशरब है मोहब्बत। अब आप बोल रहे हैं कि मोहब्बत करें तो सामने से भी मोहब्बत पेश हो। एक तरफ से मोहब्बत कैसे पेश कर सकते हैं हम तो तैयार थे, मगर हमें मदद किया है नहीं। साहिब ने कहा कि वहाँ से हमें बुलावा नहीं आया तो हमने जो है गलत किया है। तो कल के दिन अगर आपको बुलावा आया तो क्या आप अपने प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह साहब की बात आप नहीं समझे। साहब ने फरमाया था जब प्रोग्राम तैयार करने के पहले मीटिंग में अगर बुलाया होता तो हम अपना मशवरा देते कि फुला आलिम को बुलाइए, ये तफरुक़ा डालने वाले आलिमों को कट करके इत्तेहाद को देने वाले आलिमों को बुलाए, तब बात कुछ बन सकती थी। अब ये पोस्टर रिलीज कर दिए, फितना फसाद करने वाले आलिमों को बुला लिए, अब हमको बोलेंगे तुम आगे जुड़ जाओ बोले, तो अस्तगफिरुल्लाह, हम ऐसे आलिमों के साथ कभी नहीं जुड़ पाएंगे। अगर इत्तेहाद करना चाहते हैं तो इससे पहले सोचना चाहिए था। अब पूरे पोस्टर आने के बाद में, हाँ वजह आपने एक और सवाल साहब से पूछा था कि हमारे और उनके बीच में इख्तिलाफ क्यों है। इसका सवाल का मैं छोटा सा जवाब देना चाहूँगा। हम देखिए अहले सुन्नत वल जमात, ख्वाजा गरीब नवाज, गौसे पाक सरकार, बंदा नवाज, निज़ामुद्दीन औलिया, ये औलिया इकराम के रास्ते पर है। और हमारा जो मसलक जो है, बाकायदा हम मुहर्रम में ताज़ियादारी करते हैं, जुलूस वगैरह निकालते हैं, तमाम पंजतन पाक के अइम्मा के मौलूद करते हैं, शहादत वगैरह करते हैं। अब इनके अंदर हमारे बीच में जो फ़र्क था वो कहाँ से शुरू हुआ? पाकिस्तान की एक तंजीम है दावत इस्लामी तंजीम, जो मोसाद के साथ में मीटिंग करने के बाद यहूदियों के साथ इन्होंने माविया, जो फादर ऑफ टेररिज्म है, माविया जिसने मौलाए कायनात के साथ जंग की, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद किया, और अपने बेटे यजीद को ले आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया। ऐसे बंदे का इन लोगों ने फादर ऑफ टेररिज्म को उर्स मनाना शुरू किया, इसका बर्थडे मनाना शुरू किया। और वहाँ से हमने जब उनको सवाल पूछा कि आप अपने आप को सुन्नी कहते हैं, आप नाज़बियों का काम करके आप फादर ऑफ टेररिज्म को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ से हमने जो सवाल किया तो उसके बाद में इन लोगों ने हमको कैंची मारना शुरू करके क्या कह दिया, ये राफजी हैं, शिया हैं। इन लोगों ने हमसे दूरी इख्तियार कर ली। हम आज भी इनसे दूरी इख्तियार नहीं कर रहे हैं, हम इनको आज भी हक़ की दावत दे रहे हैं। अगर किसी सहाबा इकराम की तालीम देना है, लाखों की तादाद में सहाबा इकराम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अगर आप ज़िंदगी ले लें तो 10 साल से ज़्यादा आप उनकी शान में बयान कर सकते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ले लें तो 10 साल से ज़्यादा आप तारीफ़ बयान कर सकते हैं। सबको छोड़ के जो फादर ऑफ टेररिज्म है, जिसने आतंकवादी सोच को इस्लाम के अंदर ढकेला, ऐसे एक शख्स को, मरदूद शख्स को ले आकर सहाबी बनाने की कोशिश की जा रही है। यही हमारा इनसे एक इख्तिलाफ है कि आप फादर ऑफ टेररिज्म को दूर कर दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इस्लाम मीन पीस, इस्लाम के अंदर टेररिज्म नहीं है। बेशक इस्लाम का मतलब पीस है, इसके अंदर टेररिज्म नहीं था, मगर अब है। क्यों है? क्योंकि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, सरकार के घर के खानवादे को बेदर्द और बेमुरवत तरीके से कत्ल व गारतगरी कर दी। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खांधों पे बैठते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनका सर काट के नेज़ों पे घुमाया गया। ये मुसलमान थे, ये आतंकवाद नहीं है। और जो आतंकवाद इन्होंने करा है उसकी तारीफ़ करना, उनकी तारीफ करना, आतंकवादियों को सपोर्ट करना नहीं है। हम यही कहते हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ये इत्तेहाद इत्तेफाक समा खानी के प्रोग्राम में भी शामिल हों। और ख़ास एक इत्तला दूंगा कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो है एक खूबसूरती है कि हर मज़हब, हर मशरक़ के लोग अपने अपने त्यौहार को मनाने, फेस्टिवल को मनाने के लिए निकलेंगे। गणेश चतुर्थी भी, मिलाद भी और मैरिज फीस्ट भी, सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। आप शिवाजी नगर को अगर देखें तो पूरा मुकम्मल हिंदुस्तान नज़र आएगा। तो मैं अपने नौजवानों को भी गुजारिश करूंगा कि अगर जुलूस में निकल रहे हैं तो इत्तेहाद का, इत्तेफाक का मुजाहिरा करें, अपने वतन के झंडे भी लेकर निकलें। और कोई समझ लीजिए सामने से कोई गणेश चतुर्थी का कोई पोजीशन लेके आ रहे हैं तो उनको जगह दे दें और अपनी जगह उनको थोड़ी सी निकाल कर उनको
इत्तेहाद के साथ पास करने दें और किसी भी तरीके के नाइत्तेफाकी को उस दिन ले आने मत दें, क्योंकि अगर किसी एक की भी गलती हुई तो पूरा खामियाजा जो है पूरी कौम को भरना पड़ेगा। इसलिए अगर जुलूस निकाल रहे हैं तो इंशाल्लाह हमारे भाइयों को ये जहन में रखना होगा कि दूसरे धर्म के भाइयों का भी जुलूस उसी दिन रहेगा, तो इसका इत्तेहाद का ख्याल रखना ज़रूरी है।